All right. So in the previous class, we were discussing about the BERT, that is language model. We can consider it as a large language model, and its advanced model that was released in 2018 by Google. And what we can see here is the better understanding of languages because it is directional in nature. It processes the text from both the directions, left to right and right to left. Okay. The full form of BERT is like encoder representation from transformer bidirectional. Okay. So obviously it's made up of encoders. Encoder, you very well know that converting high dimensional data to low dimensional data. That's what we have seen in encoder. Then in the decoder, we recreate the same data. Okay, we try to recreate the similar kind of data. That's a decoder. So encoder decoder, that's what you have seen in autoencoders. That's the strength of deep learning architecture. Okay, so yesterday in BERT we did talked about encoding, token positional encoding. Okay, that's what we have studied. Embedding, that's very much important concept. I told that we are going to have the vector representation of the tokens or the words or the vocabs. Okay, we can have the word embedding, contextual embeddings, and we do have a layers in BERT related to the token, positional, and segment embeddings. Okay, for the segmentation also. Fine. And why we are doing the bidirectional? Because we want to understand the context. We want to understand the relationship between the words, the vocabs which has been used in the text. Because a word can have different context. In what regards it has been used in the sentence. So because of the different context, as you are seeing a sentence here, the bank is situated on the dash of the river. So bank and the river, how they can be logically connected, that's what my language model has to understand, because every word has a different meaning, but for what purpose they are being used here in the sentence, that's what we have to connect. Okay, so yes, context understanding from both the direction, that is the strength of BERT. Masking also, I told that in a pre-training process. Okay, you do the pre-training, model pre-training, in which you give huge amount of data to the model for training. And just like you can see the sentence here, the quick brown fox jumps over the lazy dog. So what happens here is, this is an example sentence. 85% of the data you give for a model to understand, and 15% approx you do the masking. And the reason for masking is you are expecting for from the model to fill the words which are marked, and then we compare that the words filled by the model and the actual words which are present in the sentence, are they matching or not. If the model is like doing poor performance, then we have to perform the training again. Okay, so that's what we say here, that the quick brown fox, that is on the left of the word jumps, and over the lazy dog, that is on the right side of the jumps. Okay, so if you mask the word jumps, okay, so by interpreting the left and the right, model should understand that the word jump should come here. That's the responsibility of a model, because we have trained it accordingly to understand the words and the context. Okay, so we are having so many benefits.
So as I told, we do train our model on large amount of data, massive amount of unlabeled data, just to make a model understand contextual embeddings. Okay, we do perform the masking, we do perform random masking. Okay, we'll not tell the model that okay, these are the sentences or I'm going to mask these words like okay, no, it's not right. It's a random mask. Everything is random. Okay, so during pre-training, it's already told about 15% input tokens are masked. And then we ask the model to predict, and then we match. Okay, fine, we match. So the model receive input with marks tokens. Okay, 85% are unmasked. It received the 100% tokens actually, in which 15% are masked and 85% are unmasked. So on the basis of this, it will try to predict what it could be. Fine. So yes, again, one more example I am having, like the bank is situated on the side of the river. So if I mask this and this, so the model should have to predict what these two words could be, whether it's a bank, whether it's a side in the sentence. So context understanding is very much important. We're trying to make a machine, we are trying to make a model. Ultimately, the entire goal of data science and machine learning is to make machine a model to learn over data, to understand pattern in the data. Okay, that's what our definitions are for data science and machine learning. Okay, we are feeding as much as data to the model. So now we are at a stage that okay, most of the model are being trained over a huge amount of data. Okay, most of the models are trained on huge amount of data. Now what the companies are trying to do is they are trying to increase reasoning capability of a model. Okay, reasoning. Ultimately, they're trying to develop better IQ. Though we know it's a fake IQ, because machine, na machine. There are two things. We are real. They are the products. Machines are the products which are developed by us. But the intelligence term, which I told previously also, we're trying to develop this thing, fake IQ in them. We're trying to increase the reasoning capability of them. Okay, so that they should understand the context. You're communicating to the machine. So what kind of behavior you are having? What is the expectation? Okay, and it should understand as we are growing right now. We have grown so much, and I already told that there is an exponential growth. Okay, not like linear or something. No, it's an exponential growth over the learning of the models. So that's what this bird, that's an opening. Okay, in 2018, there is an opening of all these things. Okay, we are not far away, but the work is so much advanced now. 2018, that is a language model, large language model. I consider BERT is also as a large language model. That's an opening. Okay, but right after that, like GPT, generative pre-trained transformer, just change the game totally. Okay, so but do have classification layer, it do have embedding metrics, it do have softmax loss function. All these things are there in the BERT. Okay, it can also perform the next sentence prediction. That's why also I told you in the previous class. Okay, we are going to give a model with the pair of sentences. Then later on, your model can predict what could be a next sentences or whether you are using the correct pair of sentences or not. So we can have a question answering system also. That is been also used in the language models. Okay, question answering, coding, reasoning. Okay, all these things are being checked. The model is checked over all these parameters, mathematical, whether model can do the maths or not. Okay, calculations. So all these things are checked. Fine. So next sentence prediction involves determining whether a given sentence follows another sentence or not. Okay, so during
the training, I told that 50% we give in this particular order and 50% we give random order. Then model will try to understand that whether this is correct or not. So we are having CLS token, okay, special token which has been used for the classification, and this is for the separation or segmentation. So we are having two sentences, A and the B. Fine. So they are separated by segment, okay, and it includes a classifier also, CLS token. Okay, we do give the positional embeddings also. Tokenization has been done, but we also define the position where these tokens are present in a sentence. Okay, so BERT will output a vector that is a CLS token classifier. Okay, whether this sentence should be present after that particular sentence or not. Okay, so a vector is passed through the classification layer to predict whether the second sentence is an actual sentence or not after sentence A. Okay, example also I have given in the previous class. The bank is situated on the side of the river. Sentence B is, it is a beautiful view of the water. Okay, so these can come one after another, but dogs are playing in the park, it doesn't have any sense. Okay, so it's not only that we have to make a model to learn positivity in this regards, but there are negative. It's not like that just model to produce the text. No, we want models to produce valid answer, not invalid answer. So training has been done. Okay, now we have given a lot of data to it. You are producing the results also, but that should be valid, not invalid. Okay, and that's two happens in context understanding only, and they are also part of embeddings. And I already told you that word to vector is something which you have to focus upon, because I can have, just yesterday only I told, we are having a target word and we are having a context word. Context words are the words which are closer to the target words, but still by this thing, which context word is a better word which can come along with the target word, that's what we have to decide. Okay, there could be negative combinations also. Okay, there could be negative combination, like a pairing of the words can be there which doesn't have any sense. Same thing, it is targeting. That means we can have a negative combination. For example, if I say the bank is situated on the side of the river, dogs are playing in the park. See, the task of the model is to produce the text. It has produced the text. There is no issue in here. But the point is, they are not matching. So we have to make a model to understand what is matching, what is not matching. Produce is okay. Okay, so this is positive example, this is negative example. It's just written in form of your notes here, but this is just not simply read as a note. आप इसको सिर्फ ये मान के ना चले कि यहाँ पर मैंने नोट्स के तौर पे दिखा दिया, नहीं। क्या होगा कि मॉडल को कंटेक्स्ट समझाना है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग बाय एम्बेडिंग्स, और उसको ये डिमांड करना है कि आपको पॉजिटिव पेयर बना के देना है। नेगेटिव नेगेटिव भी देगा, नेगेटिव को इग्नोर करना है। हो सकता है इंटरनली मॉडल नेगेटिव पेयर भी बना के दे रहा है। ओके, अब उसको कौन समझाएगा कि ये नेगेटिव पेयर है? ये सारी बातें आती हैं, उठती हैं। ओके, तो भाई सेंटेंस रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव डाउनस्ट्रीम टास्क परफॉर्मेंस, दैट मीन सच एज डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ये सारा काम वो बर्ट करता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर डन। सो सेंटेंसेस आर कॉन्कैटिनेटेड विद CLS एंड द सेपरेटर। ये टोकन्स के साथ सेंटेंस, ये टोकन्स को यू हैव टू गिव अलोंग विद द सेंटेंस, जस्ट इन द प्रीवियस क्लास ओनली आई टोल्ड। ये देना है। आउटपुट वेक्टर एक क्लासिफायर होगा। ठीक है, शॉर्टमैक्स से हम क्या कर लेंगे, वी विल प्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट विच सेंटेंस इज अ बेटर सेंटेंस आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये हम करते आ ही रहे कि एक वर्ड के बाद what will be the next possible word जो होना चाहिए। दिस इज हाउ योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क्स। वो प्रिडिक्ट ही तो करता है what could be the next word। ओके, अब उन्होंने, अब एडवांस तो इतना हो ही गए, इतना लॉजिक तो उनको बहुत क्लियर हो ही चुका है। अब वो इसमें रीजनिंग जोड़ जोड़ के वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और होशियारी के साथ वो कभी जीपीटी जो है, जीपीटी 3.5 से लॉन्च करा, 4 कर दिया।
ठीक है, उसके बाद वो होशियार बने। उन्होंने कहा कि ओमनी करते हैं, फिर ओ1 कर देते हैं, हो सकता है अगला ओ2 हो जाए। दे विल नॉट नेवर से दैट GPT-5 अभी नहीं बोलेंगे, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि वो बोलेंगे। ठीक है, लग ही नहीं सकता। सिमिलरली मतलब ये उनका, आई थिंक सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में दी, इफ यू डू से, तो पाइथन के भी यदि आप वर्जन्स देखो ना, आपको पता चल जाएगा। ओके, पाइथन के भी ऐसी प्रकार से वर्जन्स रिलीज हुए। यू चेक द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन। ठीक है, वो पॉइंट्स में जाते हैं, जैसे O1 आया फिर O2 आ सकता है, हो सकता है O3 या किसी और नाम से निकाल देंगे वो। इसको नहीं बोलेंगे GPT ये 5 है ना। ओके, दे आर वेटिंग फॉर दैट। फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं अपन बर्ट मॉडल की। ठीक है, वी कैन परफॉर्म द फाइन ट्यूनिंग फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वेश्चन आंसरिंग, दैट्स ऑल वी कैन डू। ठीक है, ये सारे काम बर्ट पर हो सकते हैं। ठीक है, फाइन। ये आप आर्किटेक्चर देखिए, क्योंकि द नेम ऑफ द बर्ट इट्स ना, कि बाई डायरेक्शनल एनकोडर है, तो आई विल ऑब्वियसली आई विल बी हैविंग एनकोडर ओनली। ये देखिए एनकोडर है ना, ये बर्ट बेस है यानी स्मॉल मॉडल है, और ये बर्ट लार्ज है। ओके, वी आर आई एम हैविंग so many encoder representations, many encoder layers are present. ओके, तो बर्ड बेस एंड बर्ड लार्ज कई वर्जन है, अभी मैं आपको बता दूंगा। हगिंग फेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी गिव, ओके, टेक्स्ट टू द बर्ट मॉडल। ठीक है, वो एनकोडर रिप्रेजेंटेशन से पास होगा, यानी कि जितने भी टोकन हैं, ये देख लीजिए आप, CLS आ गया, हेल्प, प्रिंस, एन वगैरह वगैरह। सो इस तरीके से आप इनपुट दोगे बर्ट को, वो एनकोडर के अंदर जाएगा। ओके, एंड देन फिर आप ये देख रहे हो, ये सीक्वेंसेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इट इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। अभी बेटर आर्किटेक्चर और मैं बताऊंगा आपको। ओके, फाइन। तो ऐसा है, एप्लीकेशंस बर्ड की काफ़ी है, फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर क्वेश्चन आंसरिंग, फॉर नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। ओके, ये टास्क वो कर सकता है। सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में वी डू यूज बर्ड, करते आ रहे थे, कर रहे थे। ठीक है, most of the people do publish the research also over the use of bird for their project purposes। ओके, करा, रिसर्च पर्पसेस करा है। अब खैर, अब एडवांस हो गया, हम आगे निकल गए चीज़ों से। ठीक है, यहाँ पर अपन कर सकते हैं आराम से। ऑल राइट, नाउ आई डू हैव सम अदर नोट्स ऑल्सो टू टॉक एंड टू डिस्कस अबाउट द बर्ड इन few more points I need to clear, especially related to the architecture. Okay, let me share my entire screen now. Okay, so here it is. So in this particular set of notes, large language model, because from here I told 2018 से large language model वाला concept आ गया। Okay, so large language model is a deep learning algorithm that can perform variety of NLP tasks. If someone say you kindly define LLMs क्या होते हैं, आप बोलोगे ओके यू आर टॉकिंग अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, रुको जरा, अभी एक एक करके बात करते हैं। पहले तो मैं बताता लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं। मॉडल, भाई मॉडल आप बोलोगे, मॉडल ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। मशीन लर्निंग के अंदर आप बोलोगे अरे तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल है दोज एल्गोरिदम्स, those techniques which can process language, they are called as language model. Those who can interpret the language, they are called as language models. Those who can analyze the language, language like what? Hindi, English, that is natural language. So models who can process, who can synthesize, who can interpret languages, natural languages, are called as language models. Now, large language models means, okay, now the thing is, okay, we are not having a small architecture, we are having a big architecture. Okay, we are having a large architecture. We are having so many parameters. That's what we call as a weight and the bias. So a model
which is built, which is trained over so many parameters, millions of parameters, with huge amount of data. They are called as large language models. ऐसे करके बताना है, अपनी डेफिनेशन बोलना, किताब की वो नहीं, ज्ञान यही है, आपको अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेंड मॉडल को अपन लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज। इसमें से एक ट्रांसफॉर्मर है, ओके, विच कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क, ये भी बोल सकते हो आप एप्लीकेशन में, विच कैन परफॉर्म ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, मेनी थिंग, टेक्स्ट जनरेशन, मेनी थिंग, कोड जनरेशन। ठीक, सो इस तरीके का कुछ सेटअप है। इनपुट टेक्स्ट दिया आपने टू द लैंग्वेज मॉडल, इट कैन प्रोड्यूस द आउटपुट। आउटपुट टेक्स्ट देगा, तो कैट विल आउटपुट द टेक्स्ट, एक्चुअली उसका एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा, बिकॉज आपका टेक्स्ट भी इनपुट गया वो न्यूमेरिकल में ही गया है, प्रोसेस होते हुए। बीच में देर आर मेनी लेयर्स ना, you give the input to the model, there are certain layers in between which performs the numerical representation of your text, and then though you are getting the answer in this text format only, but uska bhi numerical representation होगा। ठीक है, तो बर्ट यही काम कर रहा था। बर्ट जो है, आप ऑलरेडी ये बातें पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स इट कंप्राइजेस ऑफ 3 मॉड्यूल्स, एम्बेडिंग, एनकोडर एंड अनएम्बेडिंग। कल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर एम्बेडिंग और एनकोडिंग में अंतर बताइए। मैंने कहा था कि मैं क्लियर कर दूंगा आपको, एक दिन और रुकिए। ठीक है, क्या है एम्बेडिंग, आप काफ़ी कुछ पढ़े लिए, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको और टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द एम्बेडिंग्स, बट यू नो दैट दीज आर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दीज आर द कंटेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस, ओके, which helps to identify how the words are related to each other। ठीक है, तो एम्बेडिंग होती है। क्या होता था कि वन हॉट एनकोडिंग लंबा चौड़ा पड़ता था। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्मॉल वेक्टर्स बना दिया आपने, उनको एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक, और जब आपको ये एम्बेडिंग देना है, यू हैव टू गिव दिस एम्बेडिंग्स टू द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में एनकोडर है, ये एम्बेडिंग जो है ये ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होती है, उसको एनकोडर कहते हैं। ठीक है, बस ये भी एम्बेडिंग्स भी एक रिप्रेजेंटेशन है। एनकोडर भी क्या करता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर में एनकोडर है, तो एनकोडर को उसको खुद का रिप्रेजेंटेशन चाहिए प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड एज एनकोडर्स। ओके, दैट मीन्स विच आर मेड बाय ऑगमेंटिंग द एम्बेडिंग लेयर विद पोजिशनल एनकोडिंग। यानी सीधी सीधी बात है कि आपके पास इनिशियली एम्बेडिंग्स होती हैं, यानी वर्ड एम्बेडिंग्स होती हैं। वर्ड एम्बेडिंग्स यानी आपके पास वेक्टर्स होते हैं सिर्फ वर्ड्स के, आप उसमें पोजीशन ऐड कर दो, बस वो एनकोडर होता है। ठीक है देवेश, यू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो एडिंग पोजीशन टू वर्ड, दैट इज एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस, दैट्स व्हाट हैपेंस एट एनकोडिंग। ठीक है, बाद में आप सेगमेंट भी ऐड कर सकते हो सकता है आपको आर्किटेक्चर में सेगमेंट भी मिल जाए, एडिंग सेगमेंट। सर सर तो ऐसा कुछ होता है क्या कि देखिए हमारा टेक्स्ट है वो उसकी एम्बेडिंग्स निकल आई, ठीक है, वाया एम्बेडिंग लेयर, हाँ, यस, एम्बेडिंग्स निकल आई, फिर जो ट्रांसफॉर्मर हमारा जो हमने वो कुछ दिन पहले देखा था 512 लेता है, तो वो जब 512 साइज में बन रहा है, क्या उसी को हम एनकोडिंग कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा? उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, अब वो क्या होगा, देखिए, ट्रांसफॉर्मर एनकोडर्स, एनकोडर जो है वो कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग्स को ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है, encoder will convert and transfer encoders which convert embeddings into transformer representations. So transformer representations are augmentation of your these word embeddings, and the architecture if you want to see, बताने वाला था, ये रहा आपके सामने। ये देखो, आपने प्री ट्रेनिंग के लिए अनलेबल्ड डेटा ले लिया। ठीक है, कुछ को मास्क रखा, कुछ को अनमास्क रखा, ये आपने दे दिया। दीज वेंट टू द एनकोडर्स, ये आप देखिए, ये एनकोडर्स लग रहे हैं मुझे। ठीक है, ई है ये,
तो ये तो एम्बेडिंग्स थी, ये सारी, दीज आर द एम्बेडिंग्स, टोकन्स हैं, ये वर्ड एम्बेडिंग्स हैं ये। अब जब एनकोडर में गए तो उठ के इनमें पोजीशन और ऐड कर दी गई, वी आर गोइंग टू ऐड द पोजीशन। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ये मान के चलें यहाँ पर यू मे हैव सेगमेंट ऑल्सो, ठीक है, हम सेगमेंट भी कर सकते हैं। तो ये काम, ये एनकोडिंग हो गया, दीज आर कॉल्ड द एनकोडिंग, ये एनकोडर करता है, ठीक है, पोजीशन एंड द सेगमेंटेशन, सेगमेंट एम्बेडिंग, ठीक है। तो ये एनकोडर काम करता है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन। सो इफ यू ऐड पोजिशनल एनकोडिंग, ओके, सो डिफरेंट वर्ड्स वेयर दे आर प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस, आप यदि ये लगा दोगे तो वो रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा एनकोडर का, बिकॉज वी वांट टू मेक एनकोडर अंडरस्टैंड मच मोर दैट हाउ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, उसको समझाना है, ठीक है, कि वर्ड्स का सीक्वेंस भी क्या है, विच वर्ड इज कमिंग ऑन व्हाट पोजीशन, ओके। तो दिस टास्क इज डन बाय एनकोडर by adding positional and segment encodings to the word embeddings. Okay, fine. And then we can have unembedding also. That means convert output generated by the transformer back into one hot vectors. यानी अब जो आपने देखो, आपने दिया था टेक्स्ट, आप उससे रिसीव भी करना चाहोगे ना टेक्स्ट, यू विल रिसीव द टेक्स्ट ओनली ना, एंड द एंटायर गेम इज प्लेड हियर, you gave text, you are receiving text, okay। So what happened in this all process, the entire process is, when you give a text, the text is converted into token, and we do perform embeddings of it, okay, and then these embeddings are given to the transformer encoders, they do convert them into positional encoding, okay, positional encoding, that on what position the words are, where, मतलब कहाँ कौन पहले सेंटेंस में, और उसमें आप मान के चलो, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, सेंटेंस भी आप देख लीजिए, सेंटेंस एनकोडिंग ऑल्सो, लेट मी ऐड इट। तो विच वर्ड इज प्रेजेंट in what position in a sentence number one, and whether this word is of sentence one or whether it's a word of sentence two, ओके, ये किसका है ये, ओके, ये होने के बाद, एनकोडिंग होने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मर में है, अभी बर्ड पढ़ रहे हैं, फाइन। उसके बाद वो क्या करेगा, हियर यू कैन सी इन द आर्किटेक्चर दैट it can identify this, like यहाँ पर देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, ये देखिए, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन है, देन यहाँ पर मल्टीलिंगुअल है, आई गेस स्क्वाड कुछ होगा, देख लेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपका, जब ये एनकोडिंग आपने करा, तो उसमें ये देखिए एनएसपी, दैट इज द नेक्स्ट सीक्वेंस प्रिडिक्शन, मास्किंग यहाँ पर वो एम्बेडिंग करने के साथ साथ वो सीएलएस टोकन हो गया, दैट्स ऑल्सो, इट विल सेपरेटर टोकन हो गया, ये सब ऐड कर देगा वो, इट विल ऐड एवरीथिंग, दिस इज व्हाट हैपेंस इन एनकोडिंग्स, ओके, दिस इज द टास्क हैपेंस इन एनकोडिंग, फाइन। तो ये आप देख लीजिए यहाँ, दैट मीन्स पोजिशनल एनकोडिंग करा, तो पोजीशन में व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंस, एंड द सेंटेंस, तो देयर विल बी स्टार्टिंग टोकन, देयर विल बी एंडिंग टोकन, okay, and there are rest of the tokens which are present in a sequence, their positions are also mentioned, and their sentence is also mentioned, okay, that means segment encoding वो भी mention है, पूरा mention है। तो entire जो आपका text है, उसका ये पूरा numerical representation है, numerical representation, okay, सर हाँ, and then we perform the training, ओके, ट्रेनिंग हो रहा है, प्री ट्रेनिंग, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड अनलेबल्ड, नॉट अनस्ट्रक्चर्ड, अनलेबल्ड जो है वो डेटा, इफ यू हैव टेकन,
ओके, यही कर रहे हैं हम, उसमें हम कुछ को मास्क कर देंगे, वी डू द मास्किंग ऑफ इट, मास्क भी कर दिया, ठीक है। एंड देन वी विल आस्क मास्क में ये जो टोकन है, मास्क टोकन भी ये होगा यहाँ पर, है ना, सीएलएस हो सकता है, सेपरेटर होगा, मास्क टोकन भी होगा। ओके, व्हाट यू डू इज मास्क टोकन शुड आल्सो बी देयर, होगा। तो ट्रेनिंग में ये पूरा प्रोसेस होगा। एंड व्हाट विल द बर्ड गिव, द बर्ड नेक्स्ट गिव, आपने उससे क्या पूछा था, व्हाट यू आर ट्राइंग टू, व्हाट्स द टास्क यू एक्सपेक्ट टू बर्ड परफॉर्म, क्या करना चाह रहे हैं आप? आपने कहा कि सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन करना है, तो इट विल गिव यू आउटपुट सीएलएस, वो दे देगा कि ये नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं है, उसका बाद आना चाहिए नहीं है, व्हाट इट शुड बी। ओके, we are having like text classification and next sentence prediction and there are many things, वो जो आपको एप्लीकेशन लिखा है वो सब बताएगा। yes, ask the question। सर और थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें एम्बेडिंग्स और एनकोडिंग्स में। हमने एम्बेडिंग्स में भी देखे थे कि पोजिशनल एम्बेडिंग्स और ना, सेगमेंट देखिए एम्बेडिंग्स। समझिए, वो उसने लिखा था पोजिशनल, बाद में लिखा था, पहले तो एम्बेडिंग, अब वो वही है वर्ड, थोड़ा सा एम्बेडिंग में वही न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो एनकोडिंग में भी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो इफ आई डू से एम्बेडिंग्स, ओके, एट द स्टेप नंबर 1, तो ये कंटेक्स्ट वेक्टर्स हैं, दीज आर कंटेक्स्ट वेक्टर्स। ओके फाइन, आपने और क्या करा, अब जो नीचे आया, वन इज योर पोजिशनल, अनदर इज योर सेगमेंट। ओके, तो कोई भी वर्ड किस पोजीशन पर है, दैट्स व्हाट यू हैव एडेड टू द कंटेक्स्ट वेक्टर। ओके, एडिंग द पोजीशन टू द कंटेक्स्ट वेक्टर, दैट इज पोजिशनल एनकोडिंग। अब इसको वो एनकोडिंग बोलेगा, पोजिशनल एनकोडिंग, ठीक है, दैट्स व्हाट इट विल से, एनकोडिंग। ये कौन कर रहा है, एनकोडर्स, ठीक है। एनकोडर जो काम करेगा वो एनकोडिंग होगी, एम्बेडिंग जो लेयर काम करेगी वो एम्बेडिंग लेयर करेगी, ठीक है। अगेन द थिंग इज दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी वही है, ठीक। और चाहो तो इसके बाद P प्लस CV यू गॉट PE, तो PE के अंदर यू कैन एड S ऑल्सो, सेगमेंट, तो दिस विल बी सेगमेंट एनकोडिंग, ये भी हो जाएगा। अगेन ये भी एक नया न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा आपको ऐड करना है, ठीक है। मे बी यू आर concatenating, that means you are already having a vector, context vector, for example the context vector is 0 0.5 0 0.2, and you are adding a position with it. Okay, the position is second, this word is coming at second position, and then you are adding one more term. Okay, this sentence is of this word is present at the second sentence, so 2 2.5 0.2, तो ये आपका क्या हो गया, कंटेक्स्ट वेक्टर हो गया, एम्बेडिंग, ये आपने दो और ऐड कर दिया, ओवरऑल एनकोडिंग हो गई है, दिस इज एनकोडिंग। मतलब एक वर्ड को उसका कंटेक्स्ट के साथ साथ कौन सी पोजीशन, इन विच पोजीशन इट इज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस एंड इन विच सेंटेंस इट इज प्रेजेंट, एंटायर आपने उसकी डिफिनेशन दे दी। अब लगा लो आप अपना मैथ्स, जो भी आपको लगानी, जो रीजनिंग लगानी है, जो कर रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, ये काम कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है ना, एक ही मेरे पास तरीका है, आई नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू वेक्टर्स और मैट्रिसेस। इसके अलावा बताइए क्या कर सकता हूं मैं, कोई और मैथ्स नजर आ रही है आपको, कोई और मैथ्स डू यू थिंक अवेलेबल राइट नाउ? वेक्टर्स और मैट्रिक्स है मेरे पास, और इस पे लगाऊंगा मैं जो भी वैल्यूज आ जाए मुझे बाद में इनकी, ठीक है। ये करने के बाद ऑब्वियसली वो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आई कैन कैलकुलेट, ठीक है, इनको वेक्टर्स को ऑपरेट करने के बाद, एंड देन आई कैन लुक आउट फॉर द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मिल गई तो शॉर्ट मैक्स फंक्शन लगा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट मैक्स फंक्शन विल टेल मल्टी क्लासिफिकेशन, इट विल लेट यू नो दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वर्ड और अ सेंटेंस और वॉट एवर, वो बता देगा, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स इट। ऐसी कुछ मैथ्स मुझे समझ में आ रही है, और पूछिए, यस बताइए क्या लग रहा है, और कह सकते हो आप।
सर अभी सही लग रहा है सर। अभी ठीक है? यस। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ वर्क होती है अंदर in case of your bird transformer, ये this and this is followed up in next जो भी आपके ट्रांसफॉर्मर्स आए हैं, बट मोर इन अ बेटर वे, उसमें और भी आपका एडवांस्ड टेक्निक्स मैकेनिज्म्स आर यूज्ड। ठीक है, तो भाई ये बात है, आपको आर्किटेक्चर यहाँ बताया। तो बर्ड ट्रेनिंग के बारे में there are the points which are mentioned here like quite similar. In a pre-training we use unsupervised technique। ओके, अनलेबल्ड डेटा दे दिया तो अनसुपरवाइज्ड है। ठीक है, और बोल दिया ना आपने 80% जो है आपका 15% ऑफ द टोकन्स आर मास, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड। ओके, बता दिया मास कैलम करते हैं आप, एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में 50-50% करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सो यू गिव a huge amount of data with this values like क्या क्या करना है आपको डेटा के साथ। ठीक है, एंड देन ये प्री ट्रेनिंग में होता है। सो प्री ट्रेनिंग अलाउज द बर्ड टू लर्न द लेटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस। तो आप याद करो, फिर लेटेंट रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है, एनकोडर का खेल क्या था, व्हाट द एनकोडर डू, यू ऑलरेडी स्टडीड ऑटो एनकोडर्स विद मी। ओके, एंड एनकोडर क्या करता था, व्हेन यू गिव ऑल दीज थिंग्स, एनकोडर फॉर एग्जांपल 512, 256, 128, 64, 64 को बोलता था लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होता था, यानी हाई डायमेंशनल को वो लो डायमेंशनल में सेव करके रख लेता था। दिस इज लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। अभी उसने वही बोला है, वी आर प्रिजर्विंग योर डेटा इन लो डायमेंशनल स्पेस, दैट इज व्हाट द एनकोडर डू। ओके फाइन, तो रख लिया उसने, ये प्री ट्रेनिंग में हो गया। अब और क्या है कहने के लिए उसके पास, लेट्स चेक। तो BERT pre-training allows BERT to learn the latent representation of words and sentences in context। इतना उसने सीख लिया, फिर फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं आप। दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म इन द ट्रांसफॉर्मर अलाउज BERT टू डाउनस्ट्रीम टास्क, यानी लाइक आप करो ना, इसमें अटेंशन मैकेनिज्म लग गया, सेल्फ अटेंशन यू वेरी वेल नो। कोई ऐसा था सेल्फ अटेंशन, अब क्या बोले। ठीक है, सेल्फ अटेंशन में यू टुक, वो पूरा ये बना लिया था, वर्ड 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 यहाँ से। ठीक है, आपको पता होगा, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, V1 का, V1 V2 का। ठीक है, और आपको जो रिजल्ट मिला वो मिले W1 W2 W3 ये मिले, इनको आपने नॉर्मलाइज कर लिया है ना। नॉर्मलाइज का फॉर्मूला क्या था, e⁻x अपॉन समीशन ऑफ e⁻x। ये करने के बाद आपको ये वेट्स जो मिले थे, दे आर कॉल्ड एस अटेंशन स्कोर। ये जो मिले हैं नॉर्मलाइज करने के, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस अटेंशन स्कोर, बट नॉर्मलाइज है। और इन्हीं को उठा के वापस से इन V1 V2 VT इनके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ये है सेल्फ अटेंशन। अब आपसे कोई बोले व्हाट डू मीन बाय अटेंशन मैकेनिज्म, भाई सीधा कॉपी पेन निकाल के बोलना, भी रुक बताता हूँ तेरे को, ये होता है अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो भाई ट्रांसफॉर्मर में अटेंशन ऑलरेडी है, फाइन, एंड फाइन ट्यूनिंग में उसका इस्तेमाल हो जाएगा। वी कैन यूज द अटेंशन मैकेनिज्म इन फाइन ट्यूनिंग। ठीक, तो भाई ऐसा है बर्ट का आर्किटेक्चर। बर्ट मॉडल 2 साइज में, जैसे बेस है और जैसे 110 मिलियंस, लार्ज है 340 मिलियन, तो इतने टोकन हैं, टोकन बोले सॉरी पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर बोल रहा था, टोटल पैरामीटर, पैरामीटर वही है वेट एंड द बायस, उसी की बात कर रहा है। तो 310 मिलियन पैरामीटर्स एंड 340 मिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेंड मॉडल है, ये छोटा मोटा तो नहीं था बर्ड भी। ओके, एंड 3 कंपोनेंट्स हैं, वर्ड एम्बेडिंग, पोजिशनल एम्बेडिंग, टोकन टाइप एम्बेडिंग। तो आप वर्ड और पोजिशनल समझ गए। ठीक है, यही है। एंड डिफरेंट टोकन्स हैं, CLS है, सेपरेटर है, मास्क है, और ये है आउट ऑफ वकैब। अंक का मतलब होता है आउट ऑफ वकैब, ये इतने टोकन्स भी हैं। तो आप अपने टेक्स्ट को, ओके, यू गिव द ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, ओके, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म। तो जब आप वो टोकन करते हो और उनमें ये सारी चीज़ें भी ऐड कर देते हो, ये सब, ठीक है, और ट्रेनिंग करवाते हो बर्ड की। ठीक है, फाइन। So the 3 outputs are added and then pushed it into normalization layer. The normalization layer outputs the array of vectors or dimension 768. Then they are pushed into 12 transformer encoders. कैसे क्या करा इन्होंने, ये देखो,
यहाँ पर इनपुट है माई डॉग इज क्यूट, ही लाइक्स प्ले, प्लेइंग, ही लाइक्स प्ले, आई एन जी अलग करा, सेपरेटर, माई डॉग इज क्यूट, सेपरेटर, फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, माई डॉग इज क्यूट, फुल स्टॉप, ही लाइक्स प्लेइंग, देन सेपरेटर, फिर फुल स्टॉप आ गया। तो शुरुआत करी सीएलएस के साथ, देन सेपरेटर, सेपरेटर ये लगा दिया। टोकन एम्बेडिंग होगी, यानी देखिए वो क्या हो जाएगा, माय अलग हो जाएगा, डॉग अलग हो जाएगा, इस अलग हो जाएगा, क्यूट अलग हो जाएगा, सेपरेटर ये अलग हो जाएगा, सेपरेटर ये भी टोकन होगा, एस ई पी, लाइक सी एल एस भी एक टोकन होगा, सी एल एस ये भी टोकन होगा, सब टोकन होंगे ये भी। अब ये स्पेशल टोकन्स हैं, है ना, ये आपके वर्ड के अलावा अतिरिक्त एडिशनल दिए गए हैं, दे आर फ्रॉम मॉडल साइड ओनली, ताकि वो समझाने के लिए, समझने के लिए दिए गए हैं। तो टोकन है इसमें भैया, सेगमेंट एम्बेडिंग या पोजिशनल सेगमेंट, मैंने ये बोल रहा है कि दे आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, दे आर पार्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस, वही बोला था ना देवेश मैंने, ये इसके ये तो उसने बाद में बताया, मैं आपको पहले बता दिया था, ऑलरेडी यस टोल्ड सर। प्रायर कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, तब ये ई ए लिख रहा है, ई बी का मतलब सेकंड सेंटेंस है, दीज आर सेगमेंट या सेंटेंस एम्बेडिंग्स, और बाद में भैया उसने पोजिशनल कर दी, यानी कि अच्छा पोजिशनल, बेटा ध्यान रखना, सीएल ये जीरो से चालू होती है, लेकिन जीरो वाला पहला खुद का टोकन होता है इनका, सीएलएस, दैट इज देयर ओन टोकन। बाद में माय आया फर्स्ट पोजीशन पर, डॉग आया सेकंड पोजीशन पर, इस आया थर्ड पोजीशन पर, क्यूट आया फोर्थ पोजीशन पर, सेपरेटर 5 पर, ही 6 पर, लाइक 7 पर, प्ले 8 पर, आईएनजी 9 पर, 10 पर, ऐसा है। ये देखो ये हो गए पोजीशन, बस यही काम होता है, कर दिया। और फिर इनको दे दो यार एनकोडर के अंदर, बोला ना ये 3 आउटपुट हैं, टोकन एम्बेडिंग, सेगमेंट एम्बेडिंग, पोजिशनल एम्बेडिंग, ये कह रहा था ऊपर, ठीक है। द थ्री आउटपुट्स आर एडेड, द थ्री आउटपुट्स आर एडेड, देखो इन तीनों को ऐड करा, ऐड कर दिया तीनों को, और पुश कर दिया नॉर्मलाइजेशन लेयर में, ठीक है, ये एम्बेडिंग से इनको नॉर्मलाइज करो, और उसमें से जो भी रिजल्ट आएगा उनको ट्रांसफॉर्मर में फेंक दो, गिव इट टू द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, गिव इट टू द ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर अपना रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, वो बोलेगा ट्रांसफॉर्मर एनकोडिंग्स, वो अपना रिप्रेजेंटेशन बना लेगा। तो ये आपने एम्बेडिंग करके दे दी, चाहते तो आप टोकन एम्बेडिंग करके आप पोजिशनल और ये सारे भी कर दिया, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन बना लेगा ट्रांसफॉर्मर। तो 12 ट्रांसफॉर्मर्स को दे दिया आपने, ये छोटा वर्जन है 12 वाला, वी कैन हैव मच मोर लाइक दिस। बाकी एक्सपेरिमेंटेशन है, ये ओल्ड मॉडल है तो कंपेयर कर रखा है, एक्सपेरिमेंटेशन का कोई मतलब नहीं बचा। 2018 का है, वी आर इन 2024, 6 years बैक है बस ये बात है। अब तो खैर वो जीपीटी और रैग मॉडल्स आ गए तो अलग ही। सर वो दिखाएंगे टेबल ऊपर वाली, ये देखिए, इसके ऊपर वाली, वो जो कंपैरिजन कुछ दिख रहा था हमको। हाँ ये है कुछ, हाँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ले रखा है ओपन एआई का जीपीटी, बर्ड बेस और बर्ड लार्ज, ये देख रहे हैं, ये मल्टीलिंगुअल, ये क्यू क्यू, मतलब ये सारा जो है, तो मैंने उसे हाँ वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर चेक करा गया है। ओके, सो बाई एल एस टी एम, ई एल एम ओ एंड अटेंशन मैकेनिज्म, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब मॉडल्स हैं, सोटा मॉडल जीपीटी का, इस पर रिजल्ट है, ठीक है। तो एम्बेडिंग्स हो गई, एनकोडिंग्स हो गई, बस उनको करके रख दिया अपन ने, ठीक है, बाई डायरेक्शन एनकोडर है ये, ठीक है, और सेंटेंस को इंटरप्रेट करेगा दोनों डायरेक्शन से, देन फिर आप एनकोडर के अंदर दे दो, ऐसा नहीं ओनली वन डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शंस एंड इट विल analyze, and then it is given to the encoder to keep them in a latent representation, and it will produce, ठीक है, वो जो आउटपुट भी प्रोड्यूस होगा ना, वो आपने देखा था ना सबसे ऊपर, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट रिलेटेड टू इट। तो आपको ये चीज़ नहीं मिलती, दिस इज वॉट यू आर नॉट गेटिंग, यू आर गेटिंग दिस थिंग, आपको ये मिलता है टेक्स्ट आउटपुट, ये दिखता है, लेकिन उस टेक्स्ट का ज़रूर नंबर होगा, क्योंकि मशीन नंबर समझता है। ओके, मे बी लाइक दिस कि देयर इज अ नंबर एंड देयर इज अ वर्ड, तो ये उसका इंडेक्स होगा, ये वर्ड होगा, तो मशीन इंडेक्स के हिसाब से जो वर्ड आ रहे हैं वो आपको सामने पुश कर देती है, बाकी आपको नहीं दिखता कुछ।
सर इसी को हम अनएम्बेडिंग कहेंगे क्या? हाँ, उसको इसी को अनएम्बेडिंग कहते हैं। दिस इज ओके व्हाट इट्स कॉल्ड एज अनएम्बेडिंग। ठीक है, आपके सामने ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो। ऑलराइट, ठीक है, तो ये बात है। सो दिस इज समथिंग मोर अबाउट द बर्ड। आई गेस आज भी आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके, फाइन, ठीक है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग।